it, I think Kavaldeep has sort of uncovered a huge opportunity for us today. एक बंदे ने एक काम किया और उसको उसमें सक्सेस मिल गई, तो अब हमारा पूरा खानदान वही करे, हम और कुछ काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए एब्सोल्यूट सिक्योरिटी. Being part of healthcare in UK is not about being a doctor or a nurse or just a care home worker. There are so many more opportunities out there, and he's a live example of that, where his story is even more peculiar, where he got the company to get the sponsorship license and sponsor him. Sponsorship is my goal and I need to upskill myself to a level where they have to give me sponsorship. Yes. तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 दिन में रिस्पांस देंगे, वीजा नहीं देंगे, रिस्पांस देंगे 5 दिन में. ड्रॉप करना शुरू किया, डेली नॉक करो, लेटर ड्रॉप करो. अगर भी किसी को लगता है कि नहीं यार स्पॉन्सरशिप तो मेरा बर्थ राइट है, तो नहीं है ऐसा. आई एम मोर देन हैप्पी टू गाइड देम, हेल्प देम इन एनी वे पॉसिबल, but they have to be willing to act on it. Act on it, yes. That's my only ask. If you are looking to study abroad, then watch this full video and subscribe to our channel to stay updated. Hello brother, how are you? Good. How are you? बस एकदम बढ़िया. नहीं but good, thanks for coming here. I know directly ऑफिस से भागते हुए आ रहे हो तुम. नहीं कोई टेंशन. Your conversation I'm most excited about कि यार हेल्थ केयर में सब लोग बोल रहे हैं रोज बहुत हैं. पब्लिक हेल्थ को लेकर के बहुत लोग बोल रहे हैं कि यार मत जाओ बिकॉज पब्लिक हेल्थ के बाद कोई जॉब ऑप्शंस नहीं है. Your view is completely contradictory and your view is very job है. And I'm saying what you have a very insider view on what is healthcare in UK, how to get jobs in healthcare in UK. So that is why I'm very excited. Not just myself, but I think for the entire student community यार उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. बिल्कुल. थोड़ा सा बताओ यार कमल अपने बारे में. इंडिया में मैं दिल्ली से, रोहिणी से पहले तो वो किया होम्योपैथी, BHMS. तो वो 5.5 साल का कोर्स है. राइट. जहाँ पे मैं प्रैक्टिस एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर एज वेल. होम्योपैथिक डॉक्टर. आपकी वेयर वाज योर क्लिनिक? दिल्ली में थी, रोहिणी में थी. वो फिर उस टाइम पे मैंने थोड़ा देखा कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, अब ज्यादातर लोग क्या है, वो होम्योपैथी के बाद कुछ चले जाते हैं एमडी करने, कुछ इधर उधर जॉब देखने. नहीं तो बहुत सारे लोग ना एमपीएच पब्लिक हेल्थ करते हैं. तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा कि कुछ तो करना है. तो इंडिया से करें एमपीएच, बाहर से करें. फिर देखा यार यूके का जो पब्लिक हेल्थ फ्रेमवर्क है ना, वो काफी अच्छा है. Why did you pick UK as a country? There's a thing called like cost benefit analysis. If I'm spending some money, which obviously I did not had at that time, but if I'm spending some money, what's coming out of it? What's the return of investment basically? So you have to see, if I'm studying in the university in Bombay or Jaipur, and I'm staying away from my family, all my expenses are gonna go up. But what's the scope of MPH in India? I knew some of my seniors who actually did masters in public health in India. Right. And they were struggling to find like really good paying job, and they were stuck at job which were paying them around, let's say 35,000 a month, and they were there in those jobs for like few years now. Now that's something kind of made me question that is it even worth it to go there, spend 2 years of my life, and then go into a job which initially will pay me, let's say 25k, and then eventually I'll go up to 35. And I don't think so that's good enough. That is rupees per month you are saying, right? Yeah, that's like 35,000 rupees a month. Yeah. I genuinely do not think that is good enough, right? Right. Now, then I started to look other options and look for a country which might sustain a better return of investment. And I think, I mean, if you look at the public health framework, UK has one of the strongest health framework anywhere except Australia. Australia has really good public health framework. So that's something piqued my interest, and the value of that degree is much higher than any degree I would ever get in India. So what did you study in the UK? I studied masters in public health. Okay. And I did my masters from Birmingham City University. Birmingham City University. Initially, I was not even planning to go to Birmingham City University because I thought I would not get it. I actually got my offer letter from, there's another university in Cambridge called Anglia Ruskin University. Right. But I realized like Birmingham City University is better than Anglia Ruskin. Right. Because I checked the whole, like this whole Times Magazine ranking and rating, and I did check the modules, and I think that was better for Birmingham City University, but I did not get any reply from them, and I had my offer letter from Anglia Ruskin University. Right. So at that moment I was really stuck, and I kind of, this installment payment, right? The deposit that you had to make. Yeah, so it was like 5 lakh rupees. Right. Which I did make
5 lakh rupees to in university, and All right, so you had already did. yes, I did pay my first installment, but it's more of a like a temporary money that you give to them to Right. secure your seat. Now, rest of the money you can obviously come to the university and then pay it. Right. But even at that time, I was waiting for Birmingham City University's response to me, right? Right. And my hopes were going down. And at one point, I actually went to my local SBI branch Right. and went ahead to pay rest of the money. For some reason, Yeah. that payment got rejected Right. because I did not fill some details correctly. And then You they know, there's said, destiny. that's destiny. And I went back to SBI and I said, oh, I filled it now. And the lady said on reception, like, even if I submit your file now, Yeah. it will be processed on Monday, Right. So there's no point. Why don't you come on Monday? I said, that's fine. So I'll just come on Monday then. Can you imagine? Monday morning, I woke up with an offer letter from Birmingham City University. So yeah, that's how I got into Birmingham City University. And I do remember at that time, like there were flights were canceling. Right. So I did book my Air India ticket, but that flight got cancelled and things got delayed. And even at that time, like everything was going online. So I Right. started my studies online. I had my induction while I was in Delhi. Right. But eventually on 18th of Feb, I finally got onto my flight, which was from Virgin Atlantic. And yeah. So when did you complete your I finished my MPH in 2022 March. March? Tell us now, I think what's most exciting about your story is to understand your journey in terms of how did you manage or navigate the healthcare industry in the UK? How did you start? From the very early on, I had this idea that I need to do my study properly because I need to get a job which is suited to my position. Most of my friends at that time, like there was a culture among international students to only and only talk about part-time jobs. Restaurant कर लो, आप warehouse कर Hello. आप शॉप में लग जाओ, Care आप home करो। केयर होम कर लो, Yeah. आप मैकडोनल्ड्स में लग जाओ, आप यहाँ लग जाओ, वहाँ लग जाओ, ठीक है? ये एक कल्चर था। Right. ये जो कल्चर है ये मेरे को समझ ही नहीं आया और मैं एक टाइम पे इस कल्चर के अंदर चाहता बहुत डीप। उस टाइम पे अलग यूट्यूबर्स होते थे, आज हैं यूट्यूबर्स। और उस टाइम सारे दोस्त आपकी तरफ वही बातें, then you get वो influenced so much by them. देखो मैंने रेस्टोरेंट भी किए, जो शॉप्स हैं वहाँ भी जॉब की, वेयर हाउसेस में भी काम किया, चिकन शॉप्स होती हैं वहाँ भी, बट मैंने कभी भी ज़्यादा नहीं किया। जैसे मेरे फ्रेंड थे वो तो कैश इन हैंड जॉब करते थे काफ़ी मंडे भी ट्यूसडे भी तो ये कॉलेज तो जा ही नहीं रहे हैं और ये काम जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि हमें अपनी जो फी है, जो लोन है, हमने लोन पे अपनी फी भरी है, अपना लोन रिटर्न, Right. तो वो बस पैसा बना लो जितना जल्दी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म माइंडसेट बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म माइंडसेट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना उनके लगता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो इस माइंडसेट आते ही नहीं है कि वो फ्यूचर वो आते हैं कि मैंने अपना बस पैसा पूरा कर लूँ किसी तरीके, मगर वो ये नहीं देखते कि आपका चलो पैसा पूरा हो जाएगा, आपका ये पैसा पूरा करने में आपको 2-3 साल लग जाएंगे, उसके बाद आप क्या करोगे? सोचो, अब आप जिसको देखो यहाँ पे जो भी आता है वो क्या MBA बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, ये तो इतने बच्चे कर चुके हैं यहाँ पे। लो आप क्या स्टडी करते हो मास्टर्स में? इंटरनेशनल बिजनेस, राइट, या मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड कोई कोर्स होता है, राइट। अब आप उनसे कोर्स करोगे क्या? कोई स्कोप ही नहीं है इस कोर्स का, बिकॉज आप एक जेनरिक प्रोग्राम का जिसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड स्किल आपको मिल ही नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, और आप ये करके आप कुछ नहीं करोगे। कर भी क्यों रहे हो? क्योंकि जी हमारे एजेंट ने बोला है वो क्योंकि हमें काउंसलिंग की जरूरत लगती ना, मैं BBA करके भी कर सकता हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, so that is one formula fit all। तो वो क्या, मैं जैसे इंडिया में तो बड़े वो IDP टाइप है ना, तो वो उनका काम ही कि उनका काम है यहाँ से उनको भेज देना, उसके बाद बच्चे का आगे ना करे, उनको क्या लेना देना। बिल्कुल। तो ये जो माइंडसेट है ना शुरू से आंखों में खटकी, यार ये नहीं करना यार, ये तो बट यू डिड ऑल दीज पार्ट टाइम जॉब्स, ऐसा नहीं है कि दैट यू डिडंट, ज्यादा नहीं, सो यू मेड श्योर दैट यू आर स्पेंडिंग इनफ टाइम ऑन योर स्टडीज, you are learning what you came for। Absolutely। But then how did your transition start happening towards healthcare? तो जब आप देखो स्टडी करते हो ना, आप जो कोर्स मिला है आप उसे मॉड्यूल जेन्युइनली पर अच्छी चीज़ है कि उस टाइम पे ये चैट GPT का टाइम, तो मैंने जो भी किया वो खुद रीड कर, रिसर्च पे रिसर्च खुद रीड कर, समझ में आता है। तो आप जब थोड़ा डिटेल में गए ना अपने मॉड्यूल्स में, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ये कैसे रिलेट। Hi, welcome. Hello. Are you alright? London. My name is Jamie Lee, Hi Jamie. also known as
Jamila. Hi, because Jamila. I'm a Muslim. Are you? Yeah. Are you? That's really good. Thank you for saying hi. Yeah, Thank you. yeah, Cheers. She was drunk. yeah. But that's the reality of this park. Like, there's so many people who drink and obviously they take cannabis and they are lying Right. around. I think that's the problem you're trying to solve. And that's something Absolutely. we would want to know more about. So you were doing your modules well. What did you learn from that? So one thing I really learned, like if you read your modules clearly, it kind of relates to what kind of jobs are available in the market, right? Like first you have to understand the system here. Basically what most people do not really try to go into is to understand how this country really works, how job market in this country really works. Because it's unlike India, it's very structured. It's not that कुछ भी चल रहा है, ऐसे नहीं है. हर चीज़ का स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं. हर चीज़ के एक कैसे समझाऊं, एक वैल्यू होती है. अगर आप फ्री वॉलेंट्री वर्क भी कर रहे हो, एक वैल्यू है ना? तो ये जो वैल्यू है उसकी हम नहीं वैल्यू कर, यहाँ पे है वैल्यू उस चीज़ की. हमें वैल्यू करना ज़रूरी है. जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओहिड है. पहले ओहिड हम पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड था. ये समझना होगा कि यूके में सिर्फ इंग्लैंड नहीं, वहाँ पे वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी है. Right. तो पब्लिक हेल्थ स्कॉटलैंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, Right. पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड अलग है, पब्लिक हेल्थ वेल्स अलग है. Right. अभी वो सारा कंसोलिडेट करके ओहिड में कर दिया. ऑफिस ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड डिस्पैरिटीज नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है. वो गवर्नमेंट की है. गवर्नमेंट की है. उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारी पब्लिक हेल्थ जॉब्स और उनमें नॉलेज भी है. Right. दूसरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो एक और मेजर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, DHSE. राइट. तो वहाँ पे लोगों को जाना होता है, चेक करना होता है. फिर उसका वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब बैंक है, वो gov.uk में आप जाओगे आप. राइट. फिर उसका जो बिगेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर है इस कंट्री में, वो NHS है. NHS. राइट. ठीक है. तो वो NHS के आप पोर्टल पे जाओगे, वहाँ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से सारी पब्लिक हेल्थ जॉब्स आपको दिखेगी. राइट. ठीक है. आप अगर उनके NHS के जॉब पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस, ऑक्सिलरी नर्सिंग या नर्सिंग, ऑप्टोमेट्रिस्ट, है ना, ऐसे करके वहाँ पे लिखा अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल. राइट. क्लिक कर सारी जॉब्स आपको देख, जो कि पब्लिक हेल्थ के. राइट. अच्छा, ये सारी बातें होगी नेशनल लेवल पे. राइट. बाद आती हैं हमारी लोकल लेवल पे. अब विद इन दिस कंट्री आपका देयर लाइक डिफरेंट प्रोविंसेस, लाइक नॉर्थ है, साउथ है, फिर बीच में मिडलैंड्स है, और इधर जैसे इधर डेवन, कॉर्नवॉल है, दूसरी साइड कैंट है, नॉर्थहैम्पटन, साउथहैम्पटन, ये सारा एरिया सेपरेट है. So everyone has a like a district, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वैसे एक जोनल लेवल पे होता है. तो नेशनल लेवल की आपने ऑलरेडी बताई, एंड देन देयर आर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल. इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है. काउंसिल्स, जैसे अभी आप रेड ब्रिज में हो, लंदन के अंदर आई थिंक अराउंड 30 और 50 आई डोंट नो, बट बोरोज हैं बहुत सारे. बोरो की जैसे रोहिणी, दो छोड़ियां हैं दिल्ली के अंदर. हाँ बिल्कुल, वैसे ही लंदन में बहुत सारे बोरोज हैं. अभी आप जैसे रेड ब्रिज है, लंदन बोरो ऑफ रेड ब्रिज, तो रेड ब्रिज के अंदर एक काउंसिल है, ठीक है. काउंसिल का मतलब है कि वो सबती है इस बोरो में जो भी. तो बेसिकली जैसे दिल्ली में म्युनिसिपल काउंसिल होती है, इट्स सिमिलर. यहाँ पर एक काउंसिल है जो बड़ी देखती है, जिसमें हेल्थ इज अनदर वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. राइट. उसी में ही अगर आप काउंसिल की वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको वहाँ पे वर्क विद अस में राइट. आप क्लिक करोगे तो आपको मल्टीपल सोर्सेज मिलेंगे. भाई आपने काउंसिल में अगर जॉब टाइप की जॉब की है, राइट. ठीक है. So you are saying that there are more than 30 councils in जस्ट इन लंदन. just in London, apart from the national big ones. Because होता क्या है कि हर बड़ी UK healthcare, NHS, और वहीं पर ही माइंड सीमित. Everyone is actually thinking of that as one organization, but that is only one. That is the largest, but it is still a very small part of the overall opportunity. बिल्कुल. Right. और उसके बाद जब आप लोकल काउंसिल्स को सर्च कर, अब उसके एक और इसके अंदर पैरामीटर है, एक और कैटेगरी आती है, एंड दैट कैटेगरी इज बेसिकली चैरिटी वर्क, राइट. सो चैरिटी वर्क इज जस्ट लाइक सो मेनी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. जैसा दिल्ली में हम NGOs को कहते हैं ना, वैसे यहाँ पे Social work and charity organizations are there. बस बिल्कुल. उसके अंदर बहुत सारी पब्लिक हेल्थ की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मोस्टली ये ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहल एंड ड्रग्स के अराउंड काम करती हैं. Right. अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में नाम है VIA. Okay. इट यूज्ड टू बी कॉल्ड वेस्टमिंस्टर ड्रग प्रोजेक्ट, बट अभी इसको विया बोलते हैं, ठीक है. फिर एक और है चेंज ग्रो लिव, CGL. देन एक और है थ्राइव ट्राइब, ठीक है. एक और है एवरीवन हेल्थ, एक और है लिव वेल की. बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, Right. जो इस फील्ड में काम कर रही हैं. Right. अब उनके ऊपर देखने वाली बात है. अच्छा, उसके बाद आपने और अगर डिटेल में सर्च करना है,
अभी अगर आप देखेंगे तो जैसे जो नेशनल लेवल पे कुछ चैरिटीज़ हैं जो बहुत नेशनल लेवल पे जगह पे होती हैं, राइट जैसे आप कैंसर रिसर्च यूके देखो, एज यूके देखो, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूके में ऑल ओवर हैं। राइट कुछ ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड स्पेसेस में बहुत लोकलाइज्ड है, कुछ नेशनल। तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है। इनके जॉब पोर्टल्स क्या है? चैरिटी जॉब्स यूके का पोर्टल, पब्लिक हेल्थ जॉब्स यूके का पोर्टल है, नर्सिंग हेल्थ जॉब का पोर्टल है। ये स्पेशलिस्ट पोर्टल्स जहाँ आपको इसी टाइप की जॉब्स मिलेंगी। Right. ये चीज़ जो है, ये आप अगर नहीं रिसर्च करोगे, मेरे को किसी ने मेरे कान में बता दिया आके वाली बात। बट हमने आज बता तो रहे हैं यार, सबके कान में बता रहे हैं, सबको हाँ। बता रहे हैं। नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देन देयर आर काउंसिल्स व्हिच आर सॉर्ट ऑफ लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड देन देयर आर चैरिटीज। चैरिटीज So there are 3 types of organization जिसके अंदर allied healthcare workers में we will have lot of opportunities, बहुत not सारी हैं। just for public health students but in general many students can apply for them. और जो भी हेल्थ केयर के काम करना चाहते हैं, आप अपना पहले तो सोच का दायरा ये केयर वर्किंग से आगे बढ़ाओ। Right. क्योंकि मेरे चीज़ फील होती है कि एक बंदे ने एक काम किया और उसको उसमें सक्सेस मिल गई, तो अब हमारा पूरा खानदान वही करे, हम और कुछ काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें चाहिए एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। Right. तो ऐसे तरक्की नहीं मिलेगी आप जब तक नया रास्ता नहीं देखोगे, है ना। मैंने भी अपना रास्ता ऐसे ही देखा, अब मैं भी वही करने लग जाऊं जो सारे लोग कर रहे हैं, तो अरे उसमें सक्सेस होते हैं कितने नहीं, आप परसेंटेज निकाल के देखो फिर खुद ही आएगा कि नहीं यार 100 लोग होते हैं, 10 सक्सेस होते हैं, 90 जाते भी तो हैं। उस टाइम पे देखो मेरे को तो नहीं था कोई बताने वाला Right. कि ये सारी जो मैं आपको पोर्टल्स की बात बता रहा हूँ, Right. ये मेरे को किसी ने नहीं बताया कैसे करते हैं, और मेरे तो दोस्त भी नहीं थे। और हर स्टूडेंट के माइंड में ना एक क्वेश्चन होता है हमेशा, हमें क्या चाहिए? स्पॉन्सरशिप। Right. इसके सिवा कितने स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में और कोई बात ही नहीं है, वो कहते हैं जॉब तो आप जॉब हमसे घास कटवा लो, अब स्पॉन्सरशिप में हमें वीज़ा चाहिए बस। तो देखो मैं उनकी बात पे एग्री करता हूँ। अब वो कहते हैं हमें वीज़ा चाहिए, ठीक है, वीज़ा आपको मिलेगा आपकी स्किल के बेसिस पे। ये कंट्री वीज़ा कैसे देती है? वो अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिख के हम स्किल बेस्ड सिस्टम पे वीज़ा देंगे। Right. स्किल आप लेना नहीं चाहते, वीज़ा आपको चाहिए। कैसे मिलेगा? आप समझ रहे हो? So I think you very well explained the overall healthcare opportunity, different types of jobs also in them, and tell us your journey. बिल्कुल, मैं उसी पे ही आ रहा था कि अब मैंने बहुत सारी जॉब अप्लाई करनी शुरू की। जब मेरा क्लोजिंग टाइम आ गया ना, उस पर अपना एम ख़त्म होने लगे, Right. डिसर्टेशन मैंने सबमिट कर दी, तो सिर से मेरे एक स्ट्रेस हट गया कि अरे हाँ चलो डिसर्टेशन पूरी हुई, मैं थोड़ा तैयारी करूँ। फिर उसके बाद मेरे को जहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैंने रिसर्च वर्कर पे की जॉब पे अप्लाई किया, Right. ठीक है, रिसर्च असिस्टेंट जॉब अप्लाई की, These were in NHS. हाँ, केयर कोऑर्डिनेटर, यूथ वर्कर, ये सारी मैंने जॉब अप्लाई करनी स्टार्ट की। किसी का इंटरव्यू आया, किसी का नहीं आया। जिनका इंटरव्यू भी आया वहाँ मैं इंटरव्यू देने गया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको मैंने बताया कि मैं देखो दिल्ली में डॉक्टर था, मेरे को ये नॉलेज, वो पैथोलॉजी पूरा पता, ये पता। वो कहते हैं आपने किसी यंग पर्सन के साथ काम किया है? मैं कहा देखो मेरी जो क्लिनिक है उसमें पेशेंट भी थे, उनके मैंने जैसे अलग अलग डिसऑर्डर हैं वो भी मैंने। वो कहते हैं आप नहीं समझ पा रहे हो, कहते हैं आप जाओ। तो बहुत रिजेक्शन मिला। बहुत रिजेक्शन मिला, बहुत ज़्यादा। फिर एक दिन मैं बैठे रहे ऐसी अपना नेट पे सर्च करूँ क्या, मेरे को ये समझ में आ गया था कि मेरा स्किल इशू है। हालांकि मैंने मेडिसिन की है, मैं डॉक्टर हूँ, ये सारी चीज़ों को भी साइड रख दो, मेरे को यूके बेस्ड स्किल इशू है। मेरे को अपनी स्किल को अलाइन करना है इन लोगों के सिस्टम के साथ। ये अगर मैंने नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने वॉलंटियर जॉब्स के लिए सर्च करना स्टार्ट किया। देखो 2 चीज़ों पे चलती है जॉब मार्केट। एक आपके पास स्किल क्या है, स्किल कैसे आएगा, या तो कोई सर्टिफिकेशन करो या ऐसी जॉब करो जैसे वॉलंटियरशिप कर लो। राइट, अगर ऑन द जॉब एक्सपीरियंस क्रिएट, चाहे वॉलंटियरशिप। यस एग्जैक्टली, राइट। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है, और लोकल यूके एक्सपीरियंस की एक्चुअल वैल्यू होगी। देखो ये होता है कि मतलब कंपनीज का प्रेजुडिस है, या मतलब देखो इनको सिस्टम है। मैंने शुरू में बोली थी कि सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है इस कंट्री का, और वो भी आपको इसी बात के, इसी पैरामीटर को जज के आप इस कंट्री का सिस्टम कितने अच्छे से समझते हो। आपको वो सिस्टम समझ लिए पहले इनके सिस्टम में घुसना पड़ेगा। वो है कि आप वॉलंटियरशिप करो कोई, ठीक है, अनपेड होती है मेजोरिटी। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, पोर्टल है वॉलंटियरशिप का, वॉलंटियरशिप एंड अप्रेंटिसशिप, इन दोनों पोर्टल है। अप्रेंटिसशिप जो होती है वो पेड होती है, 18 मंथ्स की होती है, मगर कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें आप मतलब लास्ट 3 ईयर से इस कंट्री में रहने वाली हैं, ऐसा ऐसा करके वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिसशिप मिलेगी, अप्रेंटिसशिप मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बट वॉलंटियरशिप के लिए राइट,
अरे लोग कहते हैं वॉलंटियरशिप कहाँ ढूंढे, मैं कहता हूँ आप gov.uk पे वॉलंटियरशिप नहीं भी आपको मिलती, आपको जो स्किल चाहिए उस स्किल की एक कंपनी ढूंढो। उस कंपनी पे अगर ऑप्शन नहीं है वर्क विद अस में, ठीक है, आप उस कंपनी को कॉल कर लो। आप एक बात बताओ, उस कंपनी को अगर आप कॉल कर पूछोगे कि भाई मेरा ये स्टडी की है, मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, मैं मोर देन हैप्पी हूँ अनपेड वर्क के पास, आपको कोई मना नहीं करेगा। स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं, छोटी कंपनीज हैं यार, मतलब दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर गुड पीपल टू कम एंड वर्क विद देम, दे डोंट हैव मनी टू पे, so this is a win win. कोई मना नहीं करने वाला। We are under this pressure of making money, so I don't want to do volunteership. That is the challenge which I think is there in everyone's mind, because everyone is thinking short term. So now if you start thinking longer term, that's where I think that's the biggest mindset shift which needs to happen for the students to start thinking their higher volunteership, so that you are building that skill instead of just doing a job. जो वॉलंटियरशिप की बात की और मनी मेकिंग की, वॉलंटियरशिप आप कभी भी आपकी 5 days a week नहीं, Right. वो आपकी आप पर है। कोई कंपनी आपको इसमें बोलेगी कि आप हमारे पास एक फ्री लेबर का काम करो, नहीं, वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, इतना पूछते हैं कि आप वंस इन अ वीक काम कर, तो उसमें आपका जो पेड वर्क है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, और आप जो वॉलंटियरशिप वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी हर कंपनी रखती है, यहाँ तक इतनी कौन है। तो आप वहाँ पे वॉलंटियरशिप किया? तो मैंने तो अभी उस टाइम पे वॉलंटियरशिप नहीं किया। जो सेकंड ऑप्शन है सर्टिफिकेशन, राइट, मैंने किया सर्टिफिकेशन, ओके, NCSCT, जो कि है नेशनल सेंटर फॉर स्मोकिंग सेसेशन ट्रेनिंग। राइट, स्मोकिंग सेसेशन, टबैको रिडक्शन, ये मेरा पहले से ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। मैंने इसमें एक असाइनमेंट भी बनाया स्टॉप स्मोकिंग में, है ना। और ये एक ऐसा टॉपिक शुरू से पसंद करता हूँ। टबैको वैसे नहीं पसंद, है ना, लोग स्मोक करते हैं, मेरे को गुस्सा चढ़ता है, तो ये को शुरू से ही माइंड में थी। फिर मैंने ये मॉड्यूल देखा, अब उसमें काफ़ी लंबा मॉड्यूल था, फ्री था, ऑनलाइन था, बट काफ़ी था उसमें लर्न करने का, तो मैंने फिर शुरू कर दिया। तो मैंने ये जो है ना NCSCT करके इस टर्म को सर्च करके जॉब सर्च की, या स्मोकिंग सेसेशन, टबैको डिपेंडेंसी, ये जो टर्म्स हैं ये मैंने पिक किए और इन टर्म्स को मैंने सर्च करके जॉब सर्च करना शुरू किया। अब मैंने ये जब किया तो उसका तो काफ़ी सारी जॉब्स दिखी, उसमें फिर मैंने जॉब है उस पर अप्लाई किया। एक क्राइटेरिया में यू मस्ट हैव NCSCT सर्टिफिकेट, तो मैंने कहा क्या बढ़िया बात है, राइट, और मैंने कर भी रखा था ये सर्टिफिकेट, तो मैंने अप्लाई कर दिया उनकी जॉब पे। अच्छा, ये थी साउथ एंड में, साउथ एंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के साथ जॉब थी। अब उस टाइम पे मैंने और भी 2-4 जॉब अप्लाई की थी जो NHS में ही थी, ये स्टॉप स्मोकिंग की। उसमें से एक थी जॉब मेरी ल्यूटन हॉस्पिटल में, ठीक है। तो NHS में ना डिफरेंट बैंड्स होते हैं, राइट, तो जो साउथ एंड के अंदर मेरी जॉब थी वो बैंड 3 की जॉब थी, ओके, और ये सेम जॉब ल्यूटन हॉस्पिटल में बैंड 4 की, तो बैंड 4 थोड़ा ज़्यादा पे होता है। राइट। सो एट ल्यूटन यू हैड बैंड 4 अपॉर्चुनिटी। मैंने जो साउथ एंड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वहाँ जॉब मैंने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट कर ली उनका। मैंने जो कंडीशनल ऑफर लेटर है वो भी मेरे को आ गया। NHS में जॉब करते हैं ना, तो आपके ब्लड टेस्ट वगैरह सब होते हैं, राइट। बर्मिंघम से साउथ एंड तक ट्रैवल किया, 4-5 उनको मैंने ब्लड टेस्ट दिया, है ना, सारे मैंने प्रोसेस किए। उसी दौरान मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया, यार जॉब तो मेरे पास है ही, ऑफर लेटर भी आ गया है, चलो कोई बात नहीं, इंटरव्यू देने में क्या ही जा रहा है, वैसे भी बैंड 4 है, एक बैंड हायर ही है ना, ज्यादा फर्क नहीं था सैलरी का, बट थोड़ा तो था ही। मैंने कहा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो मैं अपना, हाँ मगर प्रिपेयर मैं वहाँ, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ देखा ही नहीं, प्रिपेयर वहाँ भी मैं सब करके गया था। इंटरव्यू दे दिया, अभी तो मैं रास्ते में था, मेरे को कॉल आ गया, कहते हैं आप क्लियर हो गया आपका इंटरव्यू, राइट, आप ले जाओ जॉब। मैंने कहा ये क्या हुआ, मेरा तो सारा प्लान सिस्टम चेंज हो गया, मैंने तो कुछ और प्लान कर रखा था, साउथ एंड में मैं सारा कुछ करके बैठा हूँ, अब क्या करूँ। तो जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उससे मैंने 1 दिन पहले ईमेल डाला, मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। मैं कह रहे भाई क्या कर रहे हो, यहाँ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तुम्हारे पास मल्टीपल आ गई हैं। If you have any scope of giving me a sponsorship at any point of time, I have my visa to this point. If you promise me you can give me a sponsorship and time, then more than happy to join your service. If not, already have an offer from hospital and giving me a band 4 position, which is more money. First of all, second is closer to band me 5, closer to band 4, me getting good enough money to get to a sponsored job, right? They said no, I'm so sorry, but we cannot promise you around sponsored visa. I said
in that case, I apologize and sorry, I won't be able to make it. And they did understood. So you ended up joining the Luton Yes. Hospital. Long story short, I started my journey in Luton. Guys, I think one very important thing. So NCSCT, that's the certification that Kanwal did, which specifically in cessation of smoking and drugs, and that is what he tried to start his career in. That's something that he had Absolutely. done projects in, as part of public health. It's an area of interest. We turned into certification, which he turned into a job. Absolutely. And I think that is not running in the rat race. He Bilkul. figured out some unique fact and used that to do searching jobs, which required that uniqueness. Yes. And that is what converted into job for him. And don't give up right now. He has some. I have talked to him before, so I know his story. But he's got some really, thriller life Yeah. after this. So keep watching. You started at Luton. I started my job at Luton, and at that job, I quickly realized this job is gonna be for than I thought, and not for the reason I was thinking. I thought this job gonna be some rocket science, a really hard job to do, but in reality, it's not a hard job. It was super easy, and they kind of hired me before they had systems in place in that job. Right? I was in the hospital, but there was nothing at the moment regarding stop smoking. So that kind of like gave me a nick, because I'm going there, I'm getting salary, but I'm not doing anything. So you're not learning. They're giving me money, but at one point, like, it's very easy for people to slip into that kind of job or this kind of getting money. They have become comfortable and they just slip into the hole where they just stay there as long as the company allows them to stay there, right? Having said that, I was like, that's not what I'm here for. I need to not just get the job, I need to progress myself, improve myself in a way where I can have skill set to go higher and further. Because obviously job will not give me Sitting a bench won't give you the nothing. nothing. And yeah. obviously this job was not visa sponsored, so at that my goal was sponsorship, but Right. did understood at that time sponsorship is my goal and I need to upskill myself to a level where they have to give me sponsorship. Yes. Right? When you are adding enough value, Yes. that they want to give you sponsorship instead of hiring somebody else. Absolutely. So what I started there, basically started to set things into place, started to write down the statement of purpose, policies, and went along all the different maternity units which were all across the hospital and help maternity care assistant to like get the carbon monoxide reading and do the job basically, right? So that kind of laid the foundation of this whole thing. And at one point me and my colleague, we started to do the like training of different midwives and maternity care assistant around stop smoking and why it's important, why you have to embed the whole system and the service, how it's prescribed in this national guidelines around this, right? And how we're gonna implement this into this small hospital in a small town. So that kind of gave fruit, but eventually I was doing this massive learning process for me. Yeah. I went out of my way to embed myself into auditing process. I went to reach out to data team, ask them like, how can I measure, like, what's the percentage of MCAs who are conducting CO monitoring? So how can I measure this? It kind of gives you an insight into auditing. You have to measure your progress, right? So I did realize that the measurement went really up, like from 65%, which was amazing. But these things, the systems that I put in place, the backdrop of it, I was also applying for different jobs, right? And I was trying to look out for multiple jobs which might or might not give me an edge Sponsorship, yeah. or a sponsorship basically. So at that time, came across, I don't even remember when did I apply for the job I'm doing at the moment. Right. So it was part of this charity. At that time, it used to be called WDP, and I applied for this job in Redbridge. I had no clue when did I apply for this, but I was applying jobs left, right, and center, right? Obviously, the job portals I told you, I went through all. I got a call for interview for this job. It was a Teams interview. It was virtual interview for me. The best thing is be very honest what you're doing. I said, I've been given this job. These are the things I'm doing. The incentive project, the CO monitoring, the auditing, setting up 5 maternity units and how we're going to embed the whole system. That's something the interviewer really liked. She asked me many questions around this. That kind of gave her the idea that this person is passionate about this job and he knows how to do this job. Although this person do not have a management
experience before. Right. This person knows how to implement service ground up. Hardly had any expectation to get a call because this job was much higher than the band 4 job I was doing. Right. I thought, no, like they're not gonna hire me. They're not gonna hire a band 4 advisor for this job. And to my surprise, the lady who's my current manager, she gave me a call and she said, we are impressed by your interview and here's the feedback. They always give you feedback around your interview. We would like to offer you this job. And I was like, are you sure? I did not accepted the job straight away. That time I was trying to push my manager in Luton to give me sponsorship for that job. Can you give me some time and I can give you a call back? Yeah, that's absolutely fine. I'll wait for your call. So I took that job offer letter. I took that to my manager in Luton and I said, see, I'm getting this job, right? Cleared the interview. I got the offer letter and this job is really high paying, much more than what we have, right? And it's a big gap money wise, but I'm okay to let it go if there's a chance of getting a sponsored visa, because in my current position at that time there was No possibility. no possibility because this company did not had sponsored license. Yes. I know Right? that. No license. So I said, मेरा तो वीज़ा ख़त्म होने ही जा रहा है, मेरे को अभी वीज़ा चाहिए थोड़ा. तो मैंने अपनी मैनेजर को बोला कि आप प्लीज़ ऐसा कुछ आप देखो, मैं आपके लिए ये जॉब भी छोड़ दूंगा, आप मेरे को स्पॉन्सरशिप की बात तो करो. तो उन्होंने बात की, ये वो कहते नहीं हो पाएगा. उसी दौरान एक चीज़ और मेरे क्या काम में आई, ये इंटरव्यू से पहले की बात कर रहा हूँ मैं. 2022 में जो यूके के अनफॉर्चुनेटली जो क्वीन है उनकी वो डेथ हो गई. फिर उसके बाद जो किंग चार्ल्स हैं वो प्रिंस थे पहले, उसके बाद वो किंग चार्ल्स बने. तो मैं जब ल्यूटन में था तो मैं रेगुलरली ल्यूटन का वहाँ पे गुरुद्वारा है, वो अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो वहाँ मैं जाता था, डेली जाता था. मेरा रेगुलर स्केड्यूल था कि मैं वहाँ पे जाता था और वहाँ के मैं लोगों से को भी जानता था. तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे किंग चार्ल्स की विजिट. तो वहाँ पे मेरे को पता चला कि यार ये तो किंग चार्ल्स की विजिट है और ये बहुत बड़ी बात है कि देखो राजा है यहाँ का और वो उस गुरुद्वारे में आ रहा है. Right. जिस गुरुद्वारे में मैं रेगुलरली जाता हूँ. तो मैंने कहा यार ये तो, मैं जैसे ही उसका मैंने टाइम पता किया किंग चार्ल्स, मैं एकदम भागता हुआ गया गुरुद्वारे, है ना. तो कपड़े मैंने थोड़े NHS के अपने उतार के अपना अच्छे से कपड़े पहने और मैं वहाँ पे गया, गुरुद्वारे गया. तो वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और ये सब. वो मैंने कहा मेरे को अंदर जाना है. कह रहे आप कौन? मैंने कहा यहाँ मैं रेगुलर आता हूँ, डेली आता हूँ. वो कहते नहीं, कहते आपके पास इनविटेशन लेटर है. मैंने कहा ये इनविटेशन लेटर कौन सा? गुरुद्वारे में इनविटेशन लेटर चाहिए. वो कहते कि जो भी लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे उनको ऑलरेडी एक इनविटेशन लेटर आया है, जो एक होता है ना रॉयल हाइनेस इनविटेशन लेटर, समथिंग ऐसे कुछ था. वो आता है, उन्हीं लोगों की एंट्री है. आपके पास लेटर है तो फिर आपको एक बैंड मिलेगा हाथ पे पहनने का, फिर आपकी एंट्री अंदर होगी. मैंने कहा लेटर तो नहीं है मगर अंदर तो मेरे को जाना है. अरे ये तो आप बात ही क्या कर रहे हो? कह रहे ये मतलब छोटी सिक्योरिटी मैटर हो जाएगा भाई. सिक्योरिटी मैटर है, कोई ऐसे थोड़ी किंग कंट्री का और अभी बना है. तो मैंने फिर ना एक वहाँ पे गुरुद्वारे में ही एक भाई जी हैं, उनसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत थी. उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप देखो कुछ करो क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है. और मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं सिक्योरिटी थ्रेट थोड़ी हूँ यार. तो उन्होंने पता नहीं क्या किससे बात की. फिर जो काउंटर वाले थे उनको मैंने उनकी फ़ोटो दिखाई, ये सब किया. उन्होंने मेरे को बैंड दे दिया, बैंड पहना, कहते चुपचाप निकल जाओ अंदर. तो ऐसे मेरे को वहाँ पे एंट्री मिल गई. और वहाँ पे मैं आप ये देखो, छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है कि आप वहाँ पे एक वहाँ के किंग से मिल रहे हो, है ना. और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो ऐसे ही मतलब एक हमने तो कभी सोचा भी नहीं. मैं तो इंडिया में आज तक मैं किसी लोकल MP से नहीं मिला, है ना. हमें इतना क्या पता होता है, मगर आप किसी इतनी बड़ी कंट्री के एक रॉयल हेड से मिल रहे हो, है ना, तो वो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है. फिर उनको मैंने मिला, हाथ मिलाया, उनसे मैंने बात की. उनको मैंने बताया कि मैं स्टॉप स्मोकिंग में काम करता हूँ और मैं बहुत, वो कहते हैं तो ईजी काम नहीं है. मैंने कहा कोई बात नहीं, हम फुल पैशन है हमारा, करेंगे. फिर ऐसे ही उन्होंने थोड़ा जोक किया, अच्छा कह रहे आप स्मोक करते हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं करता. कह रहे फिर वेप करते होगे. ऐसे उन्होंने अपना थोड़ा बैंटर किया. तो ये एक मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी. फिर मैंने अपनी जो मैनेजर है उसको भी दिखाया. मैंने कहा देख, वो कहती ये तो आप अपने बच्चों तक को दिखाना, ये देखो कितने लोगों को मौका मिलता है ऐसे, है ना. फिर उसके बाद मैंने गुरुद्वारा नहीं छोड़ा कभी भी ना. ये मैंने हमेशा करके रखा है कि गुरुद्वारे को हमेशा मैंने अपने साथ रखा है. ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ना एक फेथ सिस्टम होना चाहिए आपके पास. आप
आपने जहाँ अपना यहाँ पे आके ना सब भूल जाते हैं लोग, यहाँ का कल्चर ही ऐसा, नशे शराब क्लब ये सब इसके अंदर ऐसे चले जाते हैं कि वो सब भूल जाते हैं फिर। और कुछ तो इंडिया से भूल के ही आए होते हैं, कुछ तो शुरू से इन्होंने कभी नहीं कुछ किया होता, मगर वही है कि फिर माइंडसेट की बात है। तो उसके बाद फिर मैं अपना रेगुलर जाता रहा गुरुद्वारे। अच्छा मेरे को नहीं पता चला, एक दिन मैं सेवा कर रहा था गुरुद्वारे में ही, तो मेरा क्या होता था, मैंने जैसे सुबह थोड़ी मैंने सेवा की, फिर उसके बाद मैं अपना ऑफिस हॉस्पिटल चला गया। हाँ। ठीक है, या मेरे पास थोड़ा टाइम हो, मेरा ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था ऑफिस हॉस्पिटल से, ज़्यादा दूर नहीं था, तो मेरे को नहीं पता चला। मैं कहा यार ये एकदम से क्या हुआ, इतने लोग आ रखे हैं। वो पता चला किंग चार्ल्स की विजिट के बाद ना मीडिया वहाँ पे, 1-2 हफ्ते बाद की बात है, मीडिया वहाँ पे आ रखी थी, BBC आ रखी है। तो वो BBC वाले आ गए और वो आके उन्होंने ना क्वेश्चन करने शुरू किए। मैंने कहा कौन है ये, हो क्या रहा है, हम तो लगे हैं अपना सेवा करने में, मेरे को समझ नहीं कि बात क्या कर रहे हैं, है ना। तो फिर उसके बाद वो कहते कि आप कौन हो। मैंने कहा देखो मैं नियर बाय हॉस्पिटल हूँ, यहाँ पे हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं अपना यहाँ पे सेवा करता हूँ और अपना फिर गया अपना हॉस्पिटल से गुरुद्वारे फिर घर। तो बहुत इंप्रेस होगी, कह रही अच्छा आप सेवा भी करते हो, आपको इतना टाइम भी मिल जाता है, आप हॉस्पिटल में भी जॉब करते हो ये सब। मैंने कहा हाँ जी मिल जाता है, मतलब निकालना पड़ता है निकाल लेते हैं। मैंने कहा और मैं कर क्या रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास पता नहीं कितना बिजनेस चल रहा है मेरा। तो फिर उन्होंने बताया, वो कहते हैं अच्छा रिसेंटली अभी यहाँ पे किंग चार्ल्स की विजिट हुई थी, आपको पता है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं ये वीडियो देखो, मैंने हाथ भी मिलाया, बात भी किए हैं और बहुत उन्होंने नाइस बैंटर किया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने मेरे को ना ऐसे कट करके बोला, कहते कि देखो आप अब उनसे मिले हो तो मेरे को आपका एक फीडबैक चाहिए, आप कैमरा में देखो और जो भी मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करो, है ना। तो उन्होंने ऐसे पूछा, मैंने वो आंसर किया। तो ये सारा बहुत जल्दी में हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। बट उस टाइम पे अब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास आज भी रखा है वो, ये BBC में उन्होंने पोस्ट किया, मेरी फोटो के साथ पोस्ट किया, तो ये BBC न्यूज़ में भी आ गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, हमें तो पता ही नहीं था। वो देखो बंदा जाए गुरुद्वारे कितना कुछ मिल जाता है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद मेरे को लगता है वहीं की प्रेयर, तो फिर वो यहाँ पे मेरी जॉब स्टार्ट होगी। मेरे उन्होंने मना कर दिया, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते, जो NHS की पॉलिसी है उसमें हम नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है फिर बाय बाय। फिर मैंने अपना यहाँ पे अपनी जॉब, स्पॉन्सरशिप नहीं मिलनी तो पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, पैसे ज़्यादा ले लेते हैं और क्या, पैसे तो चाहिए ना। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पैसे की बात नहीं है, देखो प्रोफाइल भी है, अपनी प्रोफाइल बढ़ती है और अपना जब मिल रहा है तो हम क्यों ना लें। ऐसा तो है नहीं हम फ्री में थोड़ी स्टडी किया, पैसे दिए हैं, बेशक स्कॉलरशिप मिली है बट पैसे तो दिए ना। तो यू टू रेड ब्रिज हियर। फिर मैं इल्फर्ड में मूव हो गया। तो अच्छा उस टाइम पे फिर मैं यहाँ पे इल्फर्ड में मूव हो गया। उस टाइम पे जिस दिन मैं मूव हुआ उसके अगले दिन मैं इसी पार्क में आया था, वैलेंटाइंस पार्क, मेरे को पहली बार पता चला ये। तो जॉब में जब स्टार्ट किया तो तब मेरे को समझ में आया कि जॉब तो टफ है, क्योंकि इससे पहले मैंने ना मैनेजमेंट की जॉब नहीं की थी, तो वो एकदम से बहुत कुछ सिर पे आ गया लोड, तो जॉब टफ थी। मैं जिस दिन आया उसके 10 दिन बाद मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, इंटरव्यू लिया है मैंने लोगों के 10 दिन के अंदर अपनी जॉब के हायर करने के लिए, कि एडवाइजर हायर करने हैं इसमें, है ना, और कनेक्शंस बनाने। करते करते ये देखो कि एक होता है कि इतना प्रेशर आ गया था ना कि मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, रात को मेरे को बिल्कुल ऐसे नींद नहीं आती थी, मेरे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती थी कि यार कैसे होगा यार, ये तो बहुत टफ है ना। और क्योंकि एज अ मैनेजर मैंने कभी पहले जॉब नहीं की थी, तो मैनेजर का काम होता है कि आपको ना 10 जगह पे अपना हाथ डालना होता है और हर चीज़ को आपने काउंट करके रखना है, मेजर करके रखना है, और आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। ऐसे नहीं कि आप बस बैठ गए, फिर आपने एक डिसीजन ले भी लिया तो उसके बाद आपको फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर उसको चेज करना है, और बहुत ज़्यादा कनेक्शन बिल्डिंग होती है। राइट, ये आपको करना होता है। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, ये आपको आना चाहिए एज अ मैनेजर। So did you do any more certifications? हाँ, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेशन तो काफ़ी की है। जैसे जब आप NHS में जाते हो तो वहाँ पे मैंडेटरी लर्निंग्स होती हैं, वो सारी मेरे को समझ में आई उस टाइम पे, है ना। जैसे GDPR है, डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, है ना, उसकी ट्रेनिंग होती है, फिर सेफ गार्डिंग की ट्रेनिंग होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल ट्रेनिंग होती है, फायर सेफ्टी ब्ला, ये सारी मैंडेटरी ट्रेनिंग होती हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग की, फिर इसके बाद मैंने ये यहाँ पे आके जो इस कंपनी की मैंडेटरी स्पेशल जो ट्रेनिंग्स हैं वो की। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है अराउंड दीज ट्रेनिंग्स, ये हमें पहले से करके रखनी चाहिए या फिर ये तो हर कंपनी की मैंडेटरी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग्स हैं, तो जब वो आप कंपनी ज्वाइन करोगे देन दे विल मेक यू डू गो थ्रू ऑल दोस ट्रेनिंग्स इन एनी केस। ये आपको करनी ही पड़ेगी। देखो बेसिक 2 चीजें हैं, वो तो हर इंसान को पता होनी चाहिए। पहली, अगर आप हेल्थ केयर में हो, पहली चीज है GDPR है इस कंट्री का डेटा प्रोटेक्शन लॉ, राइट, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना है बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उस पर होनी चाहिए कि आपके यहाँ से डेटा की जो सेफ्टी है वो आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि आपने अपना प्रोफेशनल ईमेल यूज करना है, अपने पर्सनल ईमेल से व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करने, राइट, है ना।
पता नहीं इंडिया में तो होता है नहीं होता। इंडिया में तो सब चीज होती है। कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना बहुत 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 important इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप किसी का डेटा ऐसे नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ। अच्छा, फिर दूसरी चीज होती है सेफ गार्डिंग, जिसपे यहाँ पे आप अगर हेल्थ केयर में हो और आपको सेफ गार्डिंग की नॉलेज नहीं है तो फिर तो आप नहीं। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो हमेशा आता है, सेफ गार्डिंग और GDPR, और अगर हुआ तो डाइवर्सिटी इंक्लूजन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मगर वो What we will try and do, we'll take some of these certification links from Kavaldeep and we'll put them in the description for you guys here. And you can actually go and review and see them for yourself. Knowledge is free. Absolutely. Knowledge should be available for everyone. So you went through this whole journey. You came in this Redbridge Council. You in this job in this not-for-profit. They didn't have a sponsorship license. They did not. उन्होंने इंटरव्यू पे ही मेरे को कहा था, we do not have sponsorship license at the moment. I cannot give you promise of that. We might or might not try to get a license. Like we had no clue about this whole visa sponsorship thingy. Right. Because it's a company-wide Yeah. thingy. We have never done that, and we don't really know how this whole thing works. So how did you turn this around? जैसे मैंने आपको बताया ना, जॉब बहुत टफ थी, मगर उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मगर मैंने सोच लिया कि यार यहाँ ना मैंने अपना 200% देना है, क्योंकि मेरी जो जॉब को अगर वो मेरे को देते भी ना, वो अगर स्पॉन्सरशिप की बात भी करते हैं तो वो एक प्रोबेशन पीरियड होता है 6 मंथ्स का, उसके बाद ही करते हैं। बेसिक चीज़ है, अगर मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ वो मेरे को एज अ एसेट नहीं देखते। Right. वो देखते ही नहीं कि यार ये बंदा ओके ही है, इतना तो उस पे इतनी फाइट क्यों मारे? Why would I even think about हाँ। sponsoring you? अगर भी किसी को लगता है कि नहीं यार स्पॉन्सरशिप तो मेरा बर्थ राइट है, तो नहीं है ऐसा, कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है। जो भी आपको करना है आपको लेना पड़ता है। उसके बाद तो फिर मैंने अपना 200% दिया। बेशक आप शाम को देर तक रुको, लैपटॉप घर लेके जाओ, घर से काम करो, कुछ भी करो, मगर एक होता है एम्पेरिकल लेवल पे ना, एक मैट्रिक्स में आपको दिखना चाहिए, एक चेंजेस दिखने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने हवा में बात कर दी, देखो क्या बढ़िया चीज़ होगी, ऐसे नहीं, दिखना चाहिए, नंबर चेंज होने चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत से होते हैं। अब वो चीज़ जो है, हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि एक बंदे को पहले ही इतना, मेरे 6 महीने में मेरे वीज़ा ख़त्म हो रहा है और ऊपर से मैं जॉब, मन में तो आता ही है ना कि मैं इस जॉब के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मगर मेरा कोई फ्यूचर सर्टेन नहीं है, तो मैं क्यों ही करूँ? सबके मन में आता के है मन में आएगा का नहीं यार, देखो अपना काम जो है वो ईमानदारी से करना है ना, और ऐसे नहीं कि मतलब ये सोच के कि नहीं यार मिला नहीं मिला, मगर कल को अगर इन्होंने नहीं भी दिया ना तो कम से कम ये कह के नहीं जाएंगे कि यार हाँ भाई एक सरदार जी आए थे और ऐसे ही बस ऐसे टाइम पास करके चले गए। मैं कहा ऐसे नहीं होता है ना, आए हैं तो कुछ करके ही दर्द होना जाएं। चाहिए जब जाएंगे तो। हाँ, जाए तो इनके तो आंसू निकाल के जाए, इनको भी लगे कि यार बड़ा सही बंदा था, चला गया हमारे हाथ से, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी, मेरी मैनेजर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा, वो बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द नाइसेस्ट लेडी, उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो मैंने उसको ना उंगली करना शुरू किया। मैंने कहा देखो काम देखो, रिजल्ट देखो, आपको क्या चाहिए। मैं कहा KPIs आप सारे देखो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। मैंने कहा देखो ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, सर्विस कैसे ग्रो हो रही है ना। मैं कहा करो आप बात करो। कहती मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल बात कर रही हूँ, और जैसे तू काम कर रहा है तेरी प्रोबेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, है तो टेंशन मत ले, मैं बात कर रही हूँ। मैं कहा कर ले यार। अच्छा, फिर इधर उधर हमने बात करना शुरू किया। उसने जब बात बोली ठीक है, वो भी ऐसे कंपनी की मालिक तो है नहीं, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, राइट, ऑल ओवर यूके इनकी ब्रांचेस हैं, है ना। उन्होंने कहा कि देखो कंपनी लेवल पे हमने CEO तक से बात की है। CEO पता क्या कहती है, आपको अकेले को तो वीज़ा हम दे नहीं सकते, अगर हमने स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लिया ना तो हमने वो पूरी कंपनी के लिए लेना पड़ेगा, सिर्फ आपके एक ब्रांच के लिए नहीं, राइट। और अगर फिर जो भी एलिजिबल होगा सबको देना पड़ेगा। कहते ऐसे नहीं होता कि बस चुपके से सरदार जी को एक हमने कॉस्ट लेटर पकड़ा दिया, राइट, तो ऐसे नहीं होता, सबको देना पड़ेगा। सिस्टम एंड वी विल गो बाय द सिस्टम। वो कहते फिर वो एक वो हो जाता है ना, अगर कल को एक एम्प्लॉय आके बोले कि आपके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है और आपने एक बंदे को वीज़ा दे रखा है बट मेरे को तो नहीं दिया, मैं भी एलिजिबल हूँ, तो कह रहे फिर ये अनफेयर हो जाता है, वो बंदा हमें ट्रिब्यूनल में ले गया, हमारी तो फिर हो जाएगी दिक्कत। और अब कह रहे अब इतने लोगों को फिर हम वीज़ा दें, तो इसमें तो पैसा कितना लगेगा हमारा। हाँ। मैंने कहा तो पैसा तो लगेगा तो लगाओ, पैसा तो होगा आपके पास। राइट। अब मेरे को क्या पता इनके पास है नहीं है, जो भी है आप लगाओ। अब देखो मैं तो जो मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है टू वर्क हार्ड एंड टू डिलीवर रिजल्ट। अब ये चीज़ मेरे हाथ में तो है नहीं। मैं कहा आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पर्सनल लेवल पे जो स्पॉन्सरशिप करने के पैसे हैं, मनी है ना, जो आपको स्किल चार्ज वगैरह देना होता है, आप मेरे से ले लो, और कुछ है तो बताओ। मैं कहा जो अपना पैसा है वो तो मैं दूंगा, हेल्थ सरचार्ज हो गया और बाकी सारे जो हो गए, बाकी जो आपको जो मेरी तरफ से पैसा देना होम ऑफिस को, मैं वो भी दे दूंगा, आप काम तो करो। तो ठीक है। फिर फाइनली बहुत ज़्यादा इनकी पता नहीं कितनी 1500 तो
मीटिंग हुई, इनकी बहुत ज़्यादा मीटिंग हुई। फिर फाइनली जो फाइनेंस टीम है, पेरोल टीम है और जो HR टीम है, इन्होंने बैठ के राउंड टेबल मीटिंग की CEO के साथ। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हम स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। मैंने कहा चल भाई, मैं कहा देखो, मेरी मैनेजर कहती देख कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं मिल ही जाएगा। राइट, होम ऑफिस का क्या, वो तो मना कर देगा, मना कर सकता है। उसके होम ऑफिस है। मैंने कहा देख मिल तो जाएगा। मैंने कहा तू टेंशन, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ मुझे पता है लाइसेंस मिल जाएगा तुम्हें, बस ये है कि कब मिलेगा ये नहीं पता। होम ऑफिस में डिलेस बहुत है ना, बहुत लंबी उनकी ड्यूरेशन है। तो वो करते करते मैं अपना करता हूँ, मेरे ख्याल 2-2.5 महीने बाद मेरे को, या 3 महीने बाद मैसेज आया उसका। मेरी मैनेजर कहती है, नहीं मेरे ख्याल पीपल्स टीम से, हमारी HR टीम से ईमेल आया। वो कहते हैं कि आपको जान के बहुत खुशी होगी, हमारा लाइसेंस आ गया, होम ऑफिस से हमारा स्पॉन्सरशिप का लाइसेंस आ गया। और कह रही आपकी ही हम सबसे पहली एप्लीकेशन लगाएंगे। कहती है अगर हमसे कोई मतलब गलती हो जाए तो माइंड नहीं करना है, हमारी कंपनी की पहली एप्लीकेशन है, हमें भी नहीं आता कैसे करना है। कह रही होम ऑफिस वालों ने हमें एक सिस्टम होता है SMS करके, स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ये दिया है, अभी हम सीख रहे हैं ये सिस्टम, हम भी सीख रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मैं कहा आप सीखो, मैं भी अपने लेवल पे रिसर्च करता हूँ। तो उनको मैंने सारी चीज़ें डिटेल में, जो भी जितना भी मैं डिटेल में दे सकता था ना, कि जैसे लिंक मैंने सेंड किया, फिर उसके नीचे एक स्क्रीनशॉट भेजा, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, क्लिक, ऐसे करके मैंने उनको ईमेल्स भेजे कि हाँ कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। फिर मैं बस वेट कर रहा था, मेरा प्रोबेशन पास हुआ और उन्होंने मेरे को कॉस्ट लेटर दे दिया। प्रोबेशन पास होने के बाद कॉस्ट लेटर आया मेरे पास, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। फिर मैंने किया, खुश, मैं बहुत खुश। हालांकि मैंने किया अक्टूबर में अप्लाई, फेब में मेरा वीज़ा ख़त्म था। राइट। तो मेरे पास कितने, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 4 महीने बाद मेरा वीज़ा ख़त्म था। तो मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया। अब अक्टूबर में मैंने अप्लाई किया तो एक चीज़ अच्छा और उन्होंने अच्छी बोल दी। वो कहते पैसा तो छोड़ो, आपने हमें क्या देना, आपने जो देना है हम वो भी आपका रिफंड कर देंगे, जो भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस जो भी होगी हम आपका रिफंड कर देंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो मैंने उसके बाद उनको मैंने बोला कि मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया होम ऑफिस के साथ। आपको पता है वो एक ऐप के थ्रू होता है, UK इमिग्रेशन ऐप के थ्रू है ना, वहाँ पे वो BRP वगैरह स्कैन होता है, वो एक पूरा प्रोसेस है वो। फिर मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और मैंने प्रायोरिटी में वीज़ा अप्लाई किया, जिसका मेरे को मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, 500 पूरा रिफंड हो रहा था। तो मैंने कहा कि यार प्रायोरिटी कर, हाँ 5 दिन में प्रॉमिस था कि हम 5 दिन में रिस्पॉन्स देंगे। राइट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 दिन में रिस्पॉन्स देंगे, वीज़ा नहीं देंगे, रिस्पॉन्स देंगे 5 दिन में। मेरे को 2 दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर स्पॉन्सर एंड वी विल बी एबल टू गिव यू रिस्पॉन्स विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम, सो यू माइट हैव टू वेट अ बिट लॉन्गर, वी हैड मोर डिटेल्स, विल गिव यू एन ईमेल एंड विल कॉन्टैक्ट यू। ठीक है, होगा कुछ चाहिए होगी बात। फिर मैंने वो ईमेल जो है फॉरवर्ड किया अपनी HR टीम को। वो कहती हमें तो कुछ नहीं आया। मैं कहती मेरे को तो आया, आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, उनका भी अभी तक उनको कोई नोटिफिकेशन नहीं, मेरे को नोटिफिकेशन आ गया। फिर मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 1 महीना बाद जाके हमारी जो टीम है उन्होंने बताया कि उन्होंने ना जॉब कोड जो होता है वो गलत डाल दिया था। उनको नहीं पता, उन्होंने अपने हिसाब से सही डाला। होम ऑफिस ने कहा जॉब कोड ठीक नहीं है, ये जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन भेजी है इसके हिसाब से हमें लगता है ये होना चाहिए जॉब कोड। अब देखो जो होम ऑफिस बोले वो ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अब क्या हम फिर से कॉस्ट लेटर भेजें, फिर से करें? वो कहते नहीं, आप जो अपना SMS सिस्टम है उसमें जाके बस चेंजेस कर दो, दैट्स इट। तो उन्होंने वो चेंजेस कर दिए। मैंने कहा ठीक है, अब तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं, ऑल गुड, अब तो आ गया बस। राइट। बस आए, मैं फिर दिल्ली की टिकट बुक करूं और मैं घर वालों से मिलने जाऊं। तो फिर नहीं आया। करते करते मैं सोच रहा था जो क्रिसमस और जो न्यू ईयर का टाइम है वो घर में मनाऊंगा। क्रिसमस भी निकल गया, न्यू ईयर भी निकल गया, जनवरी भी खत्म होने पे आ गया, वो कोई उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। जो जनवरी के अंदर तो मेरा फिर बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। मैं कहा यार पैसे भी दे दिए एक्स्ट्रा, अक्टूबर का अप्लाई कर रखा है, अब जनवरी आ गया, कोई इनका रिस्पॉन्स नहीं। मेरी HR टीम को भी कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब क्या करो, मतलब ऐसे में बंदा करे तो करे क्या, कहाँ जाए? मगर ये है ना कि तो मेरे से बैठा नहीं जाता कि मैं कुछ तो करना ही होता है, चाहे उसका कुछ निकले ना निकले, बट कुछ तो करना होता है। तो मैंने हमारे जो लोकल MP है फूड में, इनके वो मैंने पहले ईमेल लिखा। मैं कहा देखो ये सब चल रहा है, मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंट हूँ और ये सब है, और देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो लेबर MP था, तो मैं कहा लेबर को करते हैं, वो थोड़े ज़्यादा सुनते हैं इन बातों में। तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं उनके की वर्कर या उनके उससे। फिर मैंने लेटर जो है वो प्रिंट करके उनके गेट में ड्रॉप करना, वो ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ऑफिस से, ड्रॉप करना शुरू किया। डेली नॉक करो, लेटर ड्रॉप करो। ठीक है, कोई नहीं। फिर अगले दिन आए, जैसे लंच ब्रेक के टाइम पे लेटर ड्रॉप किया, नॉक किया। मैं कहा कभी तो खोलेगा, आज नहीं कल कभी तो खोलेगा मेरे लिए गेट। तो किए मैंने ऐसे कम से कम 8-10 लेटर तो ड्रॉप किए। कई बार मैं 15-15 मिनट करे जा रहा हूँ, बेल बजाए जा रहा हूँ उनकी। फिर मेरे को लगता है कि हाँ चलो टाइम हो गया वापस।
उसके बाद एक दिन खोल दिया उसने, एक दिन खोल दिया। वो जो उसकी की वर्कर थी उसको मैं पहचान गया, क्योंकि उसको मैं वही इवेंट पे मिला था। तो वो पहचान गई मेरे को, वो कहती क्या हुआ। मैंने उसको सारी बात डिटेल में बताई। मैं कहा देख यार ये सब हुआ मेरे साथ। वो एक आदमी था, उसने फिर मेरा केस स्टार्ट किया। वो कहता देखो हमारे पास होम ऑफिस का एक ईमेल एड्रेस होता है जो सिर्फ हमारे पास होता है, एमपीज के पास होता है। वो आपको नहीं मिलेगा, आपको हम सीसी भी नहीं करेंगे ईमेल में, ठीक है। आप जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है विद एविडेंस सारा कुछ स्क्रीनशॉट करके आप हमें फॉरवर्ड कर दो। मैंने उसको उसी दिन फॉरवर्ड कर दिया। फिर मैंने उसको चेज किया, मैंने कहा आपने किया ईमेल, तो उसने मेरे ख्याल 2 दिन बाद ईमेल कर दिया होम ऑफिस को। उसने होम ऑफिस को ईमेल की, अगले दिन होम ऑफिस का मेरे पास ईमेल आ गया। वो कहते हैं वी आर वेटिंग फॉर सम मनी फ्रॉम योर कंपनी। कहा यार आप पैसे नहीं दिए? मैं कहा मेरे को बता देते मैं अरेंज कर देता। मैंने ईमेल भेजा अपने एचआर को, मैंने कहा ये पैसे वाली क्या बात होगी। वो कहती पता नहीं। फिर एचआर ने होम ऑफिस से बात की, तो हो सकता है बीच में कोई एक आध चार्ज होगा जो उनको नहीं, टीम को जनरली पहली बार कर रहे थे, उनको नहीं पता होगा कि यार ये चार्ज भी कोई देना होता है। और ऐसा भी नहीं कि आपको यार अगर उनको नहीं पता तो आप बता दो ना, राइट। ये थोड़ी कि आप लंबा खींचे जा रहे हो उसको। तो वो फिर मेरे को 1-2 दिन बाद उसका ईमेल आ गया, मेरी जो एचआर है, कि हाँ हमने ना पैसा दे दिया, राइट। वो पैसा दे दिया। बस उसके बाद मेरे ख्याल हफ्ते बाद मेरा फेब के अंदर वीजा आ गया। जिस दिन मेरा एक्सपायरी थी ना उससे मेरा 3 दिन पहले वीजा आया। और उस टाइम पे तो मैंने कहना शुरू, मैंने कहा देखो बस जा रहा हूँ मैं, तो 2 दिन हूँ यहाँ पे, फिर उसके बाद चला जाऊंगा। ऐसे करके मैं ऑफिस में बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कर लो 3 दिन और ऐश कर लो, उसके बाद फिर मैं जा रहा हूँ। तो अब वीजा आ गया, तो फिर मेरी जाके सांस में। तो ये है एक प्रोसेस। तो आई थिंक द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लगे रहो और जिसको रखे साइयां मार सके ना कोई। तो भाई बिल्कुल अपना मेंटेन योर फेथ, डोंट स्टॉप वर्किंग, बिल्कुल पुट इन दैट हार्ड वर्क, बिल्कुल रिजल्ट्स विल कम सूनर और लेटर, may not come every time but बिल्कुल no substitute। और देखो रुकना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ना आपने जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया है ना, आपने जिस दिन आपका जो लर्निंग प्रोसेस है जिस दिन वो रुक गया, उस दिन आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई। अभी जैसे मैं करंटली, अच्छा ये लेवल 2 जो मैंने NCSCT सर्टिफिकेट, इसका मैंने लेवल 3 भी किया स्टॉप स्मोकिंग में। SCTRP करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका मैंने लेवल 3 सर्टिफिकेट किया। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ी है, उसका नाम है UKPHR, तो पब्लिक हेल्थ रजिस्टर है यूके का। मेरे को उसमें अपना रजिस्ट्रेशन चाहिए, वो एक क्रेडिबिलिटी देता है, तो उसके लिए मैंने रजिस्टर किया। अभी मेरे वो उसके मास्टर क्लासेस हो गए हैं सारे, राइट। और अब मैं पोर्टफोलियो बिल्ड कर अपना, तो पॉसिबली सब कुछ बढ़िया रहा तो नेक्स्ट ईयर मेरा वो पोर्टफोलियो बिल्ड होके मेरे पास UKPHR में रजिस्टर हो जाऊंगा। अच्छा मीनवाइल मैंने जो फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ है उसमें मैं फेलोशिप ली है, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ पब्लिक हेल्थ है उसमें मैंने फेलोशिप ली है, ठीक है। जो एक क्या नाम है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ है उसमें मैंने एसोसिएट वो लिया है, उनका सर्टिफिकेट है ना। तो ये सारी चीजें ये चलती रहती हैं, राइट। बैकग्राउंड में लर्निंग शुड नॉट स्टॉप लाइक यू मेंशनड। देयर आर मेनी मोर सर्टिफिकेशंस यू कैन कंटिन्यूअसली कीप डूइंग टू प्रूव दैट यू कैन राइज अप आल्सो इन द कॉर्पोरेट लैडर, एंड दैट वे your success is not just getting the job but also growing with the job and continuously adding more and more value to them, increasing your credibility. And I think absolutely that is key, I think, outcome from today's discussion. Maybe we can, you can't sit for long and you're getting uncomfortable, we can maybe start walking again. So how many advisors are there in your team now? जब मैं start किया था then I had 2 advisors. Now my team has grown to 10 people. To 10 people. Yeah. So I have team of advisors, I have 1 apprentice, I have 1 administrator, and then there's like different type of advisors. Some work for like multi-drug use, some work for outreach work, and so that's one is senior practitioner, one is junior practitioner. So this kind of thing. Right. So team has grown a lot. And I think that is also right, that now that your value is also grown with the team. Absolutely. Larger team delivering larger outcomes, handling bigger portfolio. If your organization is growing, you are growing. Absolutely. That's the right match. Perfect. और ये चीज़ मैं बहुत से जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये वाली बात बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने जो भी टीम हायर की है ना, सबको इंटरव्यू मैंने लिया है, राइट। सबको मैंने हायर किया है। जब आप इंटरव्यू पैनल में इस साइड बैठते हो ना, तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है कि आपको चाहिए क्या। इंटरव्यू क्लियर कैसे करते हैं ना, वो उसकी जो नॉलेज है वो आपको, मेरे को तो जो समझ में आई जब मैंने खुद इंटरव्यू लेने शुरू किए, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान पास करेगा ये नहीं करेगा। ये चीज़ मेरे पास इतने ज़्यादा लिंक्डइन मैसेज है, मैं आपको दिखाऊंगा, कम से कम 50-60 लोग हैं, है ना। आफ्टर दिस वीडियो और बहुत बढ़िया इतने लोगों के मैसेज आते हैं, हम क्या करें, हमने MPH कर लिया, हम क्या करें अब।
अब मैं उनको सीवी बनाएं, अपना सीवी में जैसे आपकी लैंग्वेज है वो आपकी अगर रिजल्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है तो यार मैं अगर आपका सीवी पढ़ रहा हूँ ना, आप अगर टास्क डिस्क्राइब कर रहे हो कि दिस इज माय टास्क, दिस इज व्हाट आई डिड, फॉर एग्जांपल आई डिड ऑडिट राइट इन ल्यूटन हॉस्पिटल, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आई डिड इन द ऑडिट, व्हाट्स द पॉइंट? बट आई क्लियरली मेंशन I did this audit using this methodology and which increased the CO monitoring from 60% to 85% Right. in this many months. Right. जब आप इस तरीके से तो सामने वाले को समझ में आता है कि हाँ ये जो बंदा है ये रिजल्ट ओरिएंटेड है और यही चीज़ आपको सेट आउट करेगी लोगों से. So definitely, I think so you are saying that, what exactly are you looking for when you hire? So number one thing that you mentioned is in your resume, don't just mention what you did, explain the outcome. Also Absolutely. the impact of what you did, and that is going to set you apart, which most people don't do. मैं बैंगलोर से मैंने अपने MBA किया है, and that is the first thing we were taught when we started our MBA. Absolutely. That when you are mentioning what you did, always mention the impact along with that. So exactly, same learning, I think very well said, Kawal. What other things are you looking for when you are hiring for more candidates? The way to describe something, there's a thing called STAR method. Okay. है ना, जिसमें होता है सिचुएशन, असेसमेंट, टास्क एंड रिजल्ट, है ना, ये एक स्टार मेथड है. अपने अगर आप इस तरीके से एक बात को अपनी जो भी आपने टास्क किया उसको अगर आप स्टार मेथड के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करोगे वो बेस्ट डिस्क्रिप्शन है. सबसे पहले आपने जो काम किया वो किया क्यों, है ना, उसकी नीड क्या थी, फिर आपने टास्क क्या किया, ठीक है, टास्क का फिर इम्पैक्ट क्या हुआ और उससे फ़ायदा क्या है. किसी भी स्टोरी को इस तरीके से बताओगे ना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और हर इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी. लोग बताते इतना वेगली बता नहीं पाते, जैसे आपको अपनी कहानी ही क्लैरिटी नहीं होती तो सामने वाला पाओगे. राइट. अच्छा, कितने लोग हैं इंटरव्यू प्रोसेस में वो बातों को ऐसे बताते हैं कि जैसे मैं उनके साथ में जैसे चाय पी रहा हूँ, मैं उनका रिश्तेदार को बैक स्टोरी तो पता ही होगी, दो चार बातें मतलब क्लैरिटी से बताओ. अब तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि, और दूसरा आपकी लेवल ऑफ रिसर्च, मानो या ना मानो लोग नहीं करते रिसर्च. So guys, let's take a small pause and let me tell you that I counsel hundreds of students looking to study abroad every month. And I am here to help you guys, not just with understanding your profile, which country or university is the best one for you, but help you through the admission process. And me and my team will get you your visa on time. And if you want a one-on-one counseling session with me, please go into the description. There is a link to my Calendly and you can book a one-on-one slot with me. And let's get back to our video now. किस चीज़ की रिसर्च कर? पहली चीज़ तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लो ढंग से, ये तो बहुत बेसिक है. और चैट जीपीटी का अगर आप यूज़ कर भी रहे हो, पहली चीज़ तो कॉपी पेस्ट मत करो चैट जीपीटी से, ठीक है. मतलब मेरे को तो देख के गुस्सा आ जाता है. अब वो क्या, सेम प्रोफेशनल समरी जो होती है कॉपी पेस्ट करके डाल दी, उसमें यार जॉब टाइटल तो चेंज कर लेते हैं. जिस जॉब के लिए अप्लाई किया ना वो जॉब नहीं डाली, कुछ और जॉब डाल दी. नकल के लिए भी अकल चाहिए. वही. But yes, I think this is also important because when you are doing this and you're not preparing for the interview, you are just hopping into the interview, you actually don't remember what job really you are interviewing for. And this is some feedback I've received from many people. So it's not, I thought that why would somebody do it? But I think that is real and that's a feedback for everyone. We should not do it. And if we do, then we are actually just wasting everyone's time. Our own time specifically. इतनी मेहनत करके we have got an interview call and now we are wasting that opportunity. दूसरी चीज़, आपके चैट जीपीटी ने अगर जॉब को समझ लिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी समझ में आ गया. ये इन दोनों बातों में फ़र्क होता है. चैट जीपीटी का क्या, वो तो ऐसे आंसर निकाल देगा, आप तो पढ़ो. आपकी जॉब भी कर लेगा थोड़ी. आपकी जॉब थोड़ी कर लेगा वो, आप Right. पढ़ो तो सही. और दूसरी चीज़ देखो, चैट जीपीटी जो है ये कोई वो नहीं है, ये गलत आंसर भी देता है. Right. उसमें जब खोलोगे ना चैट जीपीटी, उसमें लिखा है कि आंसर्स गलत हो सकते हैं. लोग ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे कॉपी पेस्ट आंसर में चैट जीपीटी ने लिख दिया यू आर प्रोफिशिएंट इन प्रिज्म. Yes, you were sharing this example हाँ. with me last time. Yeah. इंटरव्यू में मैंने पूछा, अच्छा आपकी प्रोफिशिएंसी तो बहुत अच्छी है, आप कह रहे हो मैंने तो ये कभी देखा नहीं सॉफ्टवेयर खोल के. ये चीज़ आपको देखनी है कि जो चैट जीपीटी है वो अपने आप से 4-5 चीज़ें डाल देता है, ऐड कर देगा. वो ऐड कर देता है. वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के उसमें जो भी आइडियल है ना वो सब आपकी उसमें समरी में डाल देता है. Right. आप प्लीज उसको And if I read find करो. one thing wrong, I will become skeptical of everything that you have said. देखो आपका ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है उस इंसान के ऊपर से. मेरे को नहीं लगता है ये पर्सन केपेबल है जॉब के लिए, है ना. मैं समझता हूँ कि अपसेलिंग एक चीज़ है, इंटरव्यूज में सब करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, करो, मगर ऑनेस्टी मेंटेन करो. Right.
आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपने ना लड़ना नहीं है मेरे से, समझो बस उस चीज़ को, समझो तो सही और ऑनेस्टली आंसर करो। अरे नहीं भी पता तो क्या हो गया, हर इंसान को सब कुछ थोड़ी पता होता है। हर इंटरव्यूअर ना एक चीज़ हमेशा देखता है बैक ऑफ द माइंड में, जो वो कभी शेयर नहीं करते किसी से, सामने वाला इंसान कितना कोचेबल है। ये बात आपको कोई भी इंटरव्यू सामने से नहीं बोलेगा, राइट। बट जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठे हो ना और आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, आपके बैक ऑफ द माइंड में ये बात हमेशा चलती है। ये हर कंपनी का प्रोसेस अलग है, दे हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, सो एवरीवन विल रिक्वायर टू बी कोच्ड। सो इफ यू कैन लर्न द वेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट बन जाता है। बिल्कुल, और हर इंटरव्यूअर ये बात जरूर देखता है कि आप कितने कोचेबल हो। अगर आप बिल्कुल ही एरोगेंट और इस तरीके से आप आंसर कर रहे हो कि मेरा वही फाइनल नॉलेज है, तो वो आपकी अच्छी बात नहीं होगी, है ना। ऑनेस्ट रहो, हम्बल रहो और जो आपकी रिसर्च है उस पर स्टिक करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं लोगों को हेल्प करता हूँ। कितने लोग हैं, उनको मैंने कहा आप अपना सीवी भेजो, मैं आपको सीवी में आपके इश्यूज बताऊंगा। अगर किसी को इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहिए, मैं उनको हेल्प करता हूँ। मैं जितना देखो मेरे पास टाइम है, मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। राइट। सो आई थिंक यू शेयर्ड अ लॉट ऑफ ग्रेट लेसन्स। अगर हम जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट ऑल वी नीड टू टेक केयर ऑफ, व्हाट आर द मेन थिंग्स दैट आर देयर, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट थिंग्स टू टेक केयर ऑफ। थोड़ा सा एक और इंसाइट्स दो। Like, so you told us one area which is a drug remission, smoking, stop smoking. That's one area. There's one kind of certifications. ऐसी कौन सी और certifications हैं which people, students can actually look at doing, because this is like one specialization. What could be other 2, 3, 4 specializations that students can look at? देखो, ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स ने किया क्या है। जैसे जिन भी लोगों ने पब्लिक हेल्थ किया, राइट, उसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। एक होता है हेल्थ प्रोटेक्शन एंड हेल्थ इम्प्रूवमेंट। उसके अंदर आप जैसे सुसाइड प्रिवेंशन कंपनीज में जा सकते हो, सुसाइड प्रिवेंशन प्रोग्राम्स जो होते हैं लोकल काउंसिल के, उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रिवेंशन या फिर रेगुलेशन जो प्रोग्राम्स है, जैसे ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। आप यूथ वर्कर बन सकते हो। What is a youth worker? यूथ वर्कर होते हो यंग पीपल्स के साथ काम करते हैं, जिनका बेसिकली वो काउंसलिंग एंड गाइडेंस देनी है यंग पीपल को, जो XYZ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यंग पीपल हैं जो ड्रग्स एंड अल्कोहल में गए हैं, उनकी हेल्प करना। अच्छा, फिर उसके बाद यंग पीपल के लिए सेक्सुअल हेल्थ होता है, तो सेक्सुअल हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ओके, ठीक है, जिसमें कैपिटल कार्ड हो गया, फ्री कॉन्डम स्कीम हो गई, ये सारे में वो काम करते हैं, okay. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उनकी नॉलेज और सेफर सेक्स पॉलिसीज, इन So सब की basically नॉलेज you have to provide coaching and enable वर्कशॉप्स देना स्कूल्स Right. में जाके, जो यंग पीपल है उनकी NHS लेवल पे जॉब्स होंगी, इसमें काउंसिल लेवल इसमें पे भी school जॉब्स level पे होंगी, बहुत jobs हैं। स्कूल लेवल पे भी जॉब्स होंगी, एंड ऑफ कोर्स देयर वुड Local बी council में। वॉलंटरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। लोकल काउंसिल में जॉब्स होती हैं यूथ वर्कर की। Right. और बहुत सारे आप देखो ना, काउंसिल में यूथ सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा जॉब वहीं होती है इनकी, ठीक And है। they are okay to hire international people? ये Yeah. And do they usually give job like visa sponsorship as well? वो आपके सैलरी बेस पे पे डिपेंड करेगा। अगर आप सीनियर प्रैक्टिशनर हो तो आपकी सैलरी मोर देन इनफ है स्पॉन्सरशिप की, Okay. तो आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होना चाहिए बस। राइट, कि मेहनत करो और अपने पे डिपेंडेंट बना लो। लाइसेंस दिलवाओ, लाइसेंस दिलवाओ। कंपनी को दिलवाओ लाइसेंस आप। आई थिंक वन डेफिनेटली योर स्टोरी इज वेरी इंस्पिरेशनल। एपिडेमियोलॉजी में जाते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है? एपिडेमियोलॉजी जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल में जा सकते हैं लोग, इन्फेक्शन कंट्रोल, कम्युनिकेबल डिजीज, वहाँ पे आप जा सकते हो। NHS में होती हैं जॉब्स एपिडेमियोलॉजी की। एंड फॉर ऑल दीज जॉब्स दैट यू हैव मेंशनड, व्हाट इज द कोर्स दैट ये सारी MPH से निकलती हैं, MPH से निकलती है। पब्लिक हेल्थ से निकलती हैं, सारी पब्लिक हेल्थ जॉब। स्टेटिस्टिक्स की जॉब है, एक टूल SPSS, राइट, स्टेटिस्टिक्स टूल। आप एपिडेमियोलॉजिकल स्टेटिस्टिशियन बन सकते हो, आपकी प्रोफिशिएंसी कर लेते हो SPSS की, है ना, तो आप वो जॉब अप्लाई कर दो। राइट। अच्छा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की फील्ड है, आप ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बन सकते हो। एंड दैट आल्सो इज आफ्टर MPH? दैट्स नॉट आफ्टर MPH, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की सेपरेट कोर्स होता है। राइट, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। दैट्स सेपरेट देन पब्लिक हेल्थ, बट विद इन पब्लिक हेल्थ में कितना सारा, कितना कुछ है। And of course, I think the other way is to go like find youth organizations, find councils, and look at the jobs that are being posted and sort of reverse understand the same thing. So, guys, let's take a small pause and let me tell you that I counsel hundreds of students looking to study abroad every month. And I am here to help you guys not just with understanding your profile, which country or university is the best one for you, but help you through the admission process. And me and my team will get you your visa on time. And if you want a one-on-one counseling session with me,
please go into the description. There is a link to my Calendly and you can book a one-on-one slot with me. And let's get back to our video now. इन सारी चीज़ों के लिए जो भी एक काउंसलिंग बेस्ड जॉब्स हैं, इसके लिए कोर्स होता है, जैसे मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग है, ठीक है, के कोर्सेज होते हैं, अब वो करो, ठीक है, CBT होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, उसके कोर्सेज हैं, अब वो करो। तो ये चीज़ें करोगे तो आपको स्किल आएगा तो आपको जॉब मिलेगी। Right. ये एक लीनियर पैसेज So और इसी MPH तरीके becomes से kind of like a foundation where you हाँ. can use these courses and certifications to build a specialization. यस एब्सोल्युटली। देखो MPH में तो आप सारे ही मॉड्यूल बताए जाते हैं, Right. उसके बाद किस मॉड्यूल पे आपने क्या फोकस करना है वो आपके ऊपर है। मेरे से जो भी कहता है मैंने MPH कर लिया, मैं क्या करूं, मैं तो पहला क्वेश्चन है उनसे कि आप करना क्या चाहते हो, पहले ये तो बताओ किस फील्ड में जाना चाहते हो। आप हेल्थ प्रोटेक्शन में जाना चाहते हो, आप ड्रग्स एंड अल्कोहल में, यूथ वर्किंग में, स्टेटिस्टिक्स में, इन्फेक्शन कंट्रोल में, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, किस में जाना चाहते हो। 90% जो मिल जाए। जो मिल जाए जी. Right. So you need to take control. You need to understand all the different opportunities and pick your. ये भी नहीं करोगे सारी सर्टिफिकेशन कर लेता हूँ, सारी जॉबों में अप्लाई कर देता अरे आपने अगर अपनी स्टडी की है ढंग Right. से तो खुद ही पता होगा कि यार ये मॉड्यूल मेरा फेवरेट है, हूँ. Right. ज़्यादा सही से समझ में आता है। Right. क्योंकि जो नहीं समझ में आती ना, और उसे करना 10 टाइम्स डिफिकल्ट है। एंड आप उसके अंदर परफॉर्म भी कैसे करोगे, परफॉर्म नहीं, मिलेगा। डिपेंडेंसी बिल्ड नहीं हाँ। करोगे तो व्हाई विल दे स्पॉन्सर यू. सो आई थिंक फाइंडिंग योर इंटरेस्ट, स्टडी हार्ड, understand what Absolutely. you are enjoying the most and try and build a specialization in that, which a lot of people discourage to do because there are no jobs after it. I think Kavaldeep has sort of uncovered a huge opportunity for us today एब्सोल्युटली। where being part of healthcare in UK is not about being a doctor or a nurse or just a care home worker. There are so many more opportunities out there and he's a live example of that, where his story is even more peculiar, where he got the company to get the sponsorship license and sponsor him and many more of his friends in the company. But I would say that, you know, this is one opportunity that we are understanding, which is new understanding, even for me. And I'm happy to be sharing it with all of you guys. So thank you so much, Kavaldeep. And आज ऑफिस के तुमने यार मचा दिया, you know, and we enjoyed your story. We loved thank you. hearing how you navigated your way to where you are today. Delhi boy, you know, दिल्ली बॉय। ruling England now, partying with the king. And वेल नॉट सो पार्टी नाउ। but thank you so much. It was lovely having you, and thanks for bringing us to this beautiful park. No, thank you so much. Likewise, and thank you so much for giving me this opportunity so I can explain what I really wanted to say and obviously share my knowledge. And I strive my best to help as many people as I can, considering how much time I have with myself. But I'm more than happy for people like me who come from really poor family, middle class family, and they have some dreams and they really want to do something about their life. And I'm more than happy as long as they are willing to do some work and do some research and actually sit down and work out their life. I'm more than happy to guide them, help them in any way possible, but they have to be willing to act on it. Act on it, yes. That's my only ask. You can take the horse to the pond, but Yes, not you can't make it drink the it. You can't horse. make it drink it. So we are. I think it's a very great day for I think all the student community to be hear from Kaval. And I would suggest you know, if you have skipped to the end, watch the entire video because every part of this is so inspirational. And if you want to meet and understand from many more people, do subscribe to our channel. I'm going to be sharing so many stories of successful Kavals all over England and UK, sharing their experience and how they got the full-time jobs and what made them successful. So guys, if you are interested in that, subscribe to our channel and share this video with more of your friends who can also learn from it and spread the knowledge. Knowledge is free. You need to act upon it. So thank you everyone. Thank you, Kaval. Thank you. Thanks Thank for you. giving us the time today, buddy. Thank you and lovely day, lovely beautiful day here in London. See you all in the next video. Cheers. So if you like this content, please subscribe to our channel and I will see you all in the next video.